Good morning students and welcome to our economics class again. In today's class we study foreign exchange rate, and in foreign exchange rate we study four important terms. These are currency depreciation, currency appreciation, devaluation and devaluation of the currency, and we also study foreign exchange market, its meaning and then its function. First we start from the currency depreciation. Currency depreciation means when price or value of the domestic currency will reduce in terms on the price and value of the foreign currency. अगर फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में हमारी करेंसी का वैल्यू कम हो जाता है, इट्स करेंसी डेप्रिसिएशन. और एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, it will reduce due to market forces of demand and supply. जो हमारे मार्केट फोर्सेस है, डिमांड और सप्लाई, उनमें चेंज होने की वजह से अगर हमारी करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, इट्स नोन एज करेंसी डेप्रिसिएशन. जैसे मान लीजिए डॉलर 75 रुपीज का, $1 इक्वल टू 75 रुपीज. नाउ बिकॉज ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, द वैल्यू ऑफ $1 रिड्यूस फ्रॉम 75 टू 80 रुपीज. इट इज द करेंसी डेप्रिसिएशन. ये क्या कहलाएगा हमारे लिए? करेंसी डेप्रिसिएशन. अब करेंसी डेप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट होगा एक्सपोर्ट पर? इट विल इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट बिकॉज द वैल्यू ऑफ आवर एक्सपोर्ट इन आवर डोमेस्टिक करेंसी विल इंक्रीज. अगर मान लीजिए पहले $1 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे को 75 रुपीज मिल रहे हैं. अब $1 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से हम 80 रुपीज मिल रहे हैं. तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, और जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो रिड्यूस होंगे. तो हमने मान लीजिए $1 का इंपोर्ट करा तो हमने कितना पैसा पे करा? पहले 75 रुपीज. अब $1 के इंपोर्ट पर हम कितना पे करेंगे? 80 रुपीज. सो इन दैट केस द आवर इंपोर्ट्स विल रिड्यूस एंड एक्सपोर्ट विल इंक्रीज. नाउ वी स्टडी अकॉर्डिंग टू द बुक currency depreciation. Currency depreciation refers to decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency. It makes the domestic currency less valuable and more of it required to buy the foreign currency. Rupee is said to be depreciated if price of $1 rises from 75 rupees to 80 rupees. अगर $1 का वैल्यू इंक्रीज हो गया 75 से 80 rupees, it is the currency depreciation. Its effect on export: depreciation of domestic currency means a fall in the price of domestic currency in terms of foreign currency. It means with the same amount of dollar, more goods can be purchased from India. It means export to USA will increase as they become relatively cheaper. यहाँ पर बुक में यूएस का एग्जांपल लिया गया है. अगर $1 75 की जगह 80 रुपीज का हो जाता है तो डॉलर का वैल्यू इंक्रीज हुआ, और विद द सेम डॉलर they can demand more goods from the India, or we are getting more domestic currency with the same export, so in that case our export will increase. The second is currency appreciation. Currency appreciation is the value of domestic currency will increase in terms of the value of foreign currency. Suppose for $1 earlier we are paying 75 rupees, now we are paying 70 rupees. So it shows that appreciation of the domestic currency, and in the case of appreciation of the domestic currency our export will fall and our imports will increase. Export कम हो जाएंगे और हमारे imports increase होंगे, because we have to pay more for our because we are receiving, we have to pay less for our imports. हम $1 के लिए पहले 75 रुपीज पे कर रहे थे, अब 70 पे कर रहे हैं, तो हमारे को डॉलर के लिए कम पे करना पड़ रहा है, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. बट इसका रिवर्स इफेक्ट आएगा हमारे एक्सपोर्ट पर. $1 के एक्सपोर्ट के लिए हमारे को पहले 75 रुपीज मिल रहे थे, अब हमारे को 70 रुपीज ही मिल रहे हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट तो कम हो जाएगा और जो हमारा इंपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज टू टर्म्स, devaluation and revaluation of currency. Devaluation and revaluation means when the value of domestic currency falls, we have to pay 75 rupees to 80 rupees now for $1. But at this time, this currency value will be decreased by the government, not by the market forces of demand and supply. Devaluation किसमें होगा? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जब गवर्नमेंट जानबूझकर
अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है। इंडियन गवर्नमेंट ने 1948 के अंदर, 1966 के अंदर, 1991 के अंदर इंडियन रुपी का डिवैल्यूएशन करा है और एज ए रिजल्ट आवर एक्सपोर्ट विल इंक्रीज एंड इंपोर्ट विल डिक्रीज। अब इससे क्या पॉजिटिव है डिवैल्यूएशन कि जब हमारी करेंसी की डोमेस्टिक वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाता है उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो तो इंक्रीज हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो जाएंगे। तो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं चाहती है। तो अगर किसी कंट्री में कभी इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तब वो क्या करती है, अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू का डिवैल्यूएशन कर देती है। सो वी स्टडी फोर टर्म्स, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। नाउ वी स्टडी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, its meaning and function. Foreign exchange market means it's a place where we can exchange our domestic currency with the currencies of the rest of the world. मतलब एक पर्टिकुलर मार्केट है जहां पर हम हमारी कंट्री की करेंसी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो करेंसीज है हम उनसे एक्सचेंज कर सकते हैं। What is its meaning? Foreign exchange market is the market in which foreign currencies are bought and sold. The buyer and seller include individual फर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, कि वो पर्टिकुलर प्लेस जहां पर हम हमारी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में चेंज कर सकते हैं। अब ये काम लगभग सभी लोग करते हैं, चाहे इंडिविजुअल से आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, चाहे स्टडी पर्पस, मेडिकल ट्रीटमेंट है, इवन आप टूरिज्म पर्पस से जा रहे हैं, तब हमारे को फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट्स होगी। इन द सिमिलर वे फर्म से, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर से, कमर्शियल बैंक से, ऑल दे नीड foreign currency. Now what are the function of this foreign exchange market? क्या काम करता है? What are its functions? सबसे बड़ा फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन। It can transfer purchasing power from domestic currency to the foreign currency. आज मान लीजिए रुपीज है और रुपीज की परचेसिंग पावर इंडिया में है और रुपीज की परचेसिंग पावर यूएस में नहीं है। अगर हम यूएस जाएंगे तो हमारे को रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। So it changes transfer function. Second credit function, yes. इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉरेन ट्रेड। अगर हम फॉरेन ट्रेड करना चाहते हैं, जो हमारे एक्सचेंज बिल्स हैं जो हम उन पर गवर्नमेंट हमारे को 3 महीने के लिए जनरली क्या करती है, इंटरनेशनल पेमेंट्स की लायबिलिटी हमारे को 3 महीने के लिए देती है। सो एक तरह से जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो क्या कर रहा है, हमारे को 3 महीने का क्रेडिट भी प्रोवाइड कर रहा है। एक उदाहरण इसके अंदर हेजिंग फंक्शन, व्हेन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल और बाय गुड्स ऑन सम फ्यूचर डेट at the current price and exchange rate, it's called hedging. The purpose of hedging is to avoid losses that might be caused due to exchange rate variation in the future. जब किसी चीज में डील तो भी करें, अगर हम डिलीवरी उसकी बाद में कर रहे हैं तो जो रेट उस पर एप्लीकेबल हो गया उसको क्या बोलते हैं, hedging functions. So all these are the function of the foreign exchange market. Now we have the types of foreign exchange market. It's of 2 types: spot market and second is forward market. व्हाट इज स्पॉट मार्केट से नाम से पता चल रहा है कि जब हम फॉरेन करेंसी में ऑन स्पॉट डील कर रहे हैं, मतलब हम जब उसके अंदर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और उसकी डिलीवरी है वो हम हैंड टू हैंड ले रहे हैं, इट इज द स्पॉट मार्केट। और जो यहाँ पर जो रेट एप्लीकेबल होगा वो उसी टाइम पीरियड का जो रेट है वही एप्लीकेबल होगा। स्पॉट मार्केट रेफर टू द मार्केट इन विच द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आर मेड इमीडिएटली। दोनों चीज का रिसिप्ट और पेमेंट क्या होगा, हैंड टू हैंड होगा और उस समय की जो रेट है वही वहां पर एप्लीकेबल होगी। जनरली टाइम ऑफ 2 बिजनेस डेज इज परमिटेड टू सेटल द ट्रांजैक्शन। स्पॉट मार्केट इज वन डेली नेचर, डील्स ओनली इन द स्पॉट ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जैसे मैंने आपको बोला। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट रेफर टू द मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इज सेटल्ड ऑन ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट ए रेट एग्रीड अपॉन टुडे। मतलब हम जिस रेट पर आज एग्री हो जाते हैं जो भी हम डीलिंग कर रहे हैं, चाहे उसकी डिलीवरी बाद में हो रही है, वो रेट हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए फॉरवर्ड मार्केट। और वो रेट आज का भी हो सकता है, वो रेट डिलीवरी टाइम पीरियड का भी हो सकता है। तो इसके अंदर भी जो फ्यूचर फ्लक्चुएशंस है इससे बचने की कोशिश की जाती है। इट इज द फॉरवर्ड मार्केट। सो ऑल दिस अबाउट आवर foreign exchange rate, and by this we also complete our chapter of foreign exchange rate. In the next class we study new chapter, its balance of payment, and it is the last chapter of your macroeconomics. And after we start our new book, second book, Indian economic development.